He's trying to tell you that you don't have to become a monk, you only have to think like a monk. And that's the where the name comes from, think like a monk, where because becoming a monk is a very extreme thing and not everyone can do it, because you have to like really like you have to lead a difficult life actually, because we are so accustomed in living a comfortable life with all the luxuries and amenities and materialistic things, that it is very difficult to live a life of a monk, where you have to detach yourself from everything, every materialistic thing, and like treat everyone with, equality. Like for me, everyone is equal, despite of your culture, values, whatever, despite of many things, you have to, everyone is equal. So that is why we are taking this book slowly, actually part wise, trying to understand the concepts here. So I'll again go with the second part. First is purpose. Now here he very beautifully explains the concept of dharma. Okay. Yeah. You carry on. Yeah, sure. Just went to switch on the AC. That I don't know when Yeah. I switched off. Sorry. No worries, no worries. So here, he beautifully explains the concept of dharma. Like he's saying, identify your calling. You have to identify your calling in life. बट अभी क्या है, अगर मैं आपको ऐसे बोल दूं आइडेंटिफाई योर कॉलिंग, तो अभी ये इसमें कैसे कैसे पता करें व्हाट इज माय कॉलिंग? You are saying to identify my calling. How to identify my calling? So here he introduced the concept of dharma. He said that dharma is a combination of passion plus skill plus what the world needs. Your skill, your passion, and what the world needs. If you combine these three together, that is your dharma. पैशन मतलब मुझे कुछ करने का जुनून होना चाहिए, राइट? बट सिर्फ जुनून होगा और स्किल नहीं होगा तो इट इज नॉट वर्थ. स्किल है, जुनून नहीं है तो भी वर्थ नहीं है. स्किल और जुनून दोनों है, लेकिन अगर वर्ल्ड को वो चाहिए नहीं, वर्ल्ड मतलब मेरे आजू बाजू लोगों को या मेरी सोसाइटी को वो यूजफुल ही नहीं है, तो भी वो मेरा धर्म नहीं है. क्योंकि मेरा कुछ पैशन है, मेरा कोई टैलेंट है, लेकिन अगर उसका यूज ही नहीं है, बाहर किसी को यूज ही नहीं है, तो वो भी मेरा धर्म नहीं हो सकता. So when you combine your passion plus skill plus usefulness, that is what it equates to dharma, and that is what you have to identify, and that will become your purpose. And once you identify your purpose, means once you identify your dharma, that is when you will attain happiness also. That's true. You will be calm from inside. Yeah. So you will get satisfaction that your passion has helped someone. Yeah. Exactly. You could do something for the society. एक तरह से आप सर्विस दे पा रहे हो, अपनी सर्विस दे पा रहे हो सोसाइटी को, and people are getting something out of it. You are trying to, in a way, you are changing someone's life in a way, in bits and pieces, but of course you are changing someone's life, right? So in that way, he's saying about the dharma. So when I was reading, I questioned myself, what is my dharma? And that is what I will tell you all, to question yourself, what is your dharma? Like like as you said, that Jay Shetty has said that there are three things that makes your dharma: your skill, your passion, your calling to your calling. Yeah, usefulness, basically usefulness. But according to me and the world where we live in presently, I don't think so. They all three go together. There are some skills, there are some passion to me, but I'm not sure that it can be useful to the world. Like वो किसी की हेल्प कर सकते हैं, ये मैं नहीं मानती. मतलब ये चीजें नहीं, मतलब मे बी कोई गोल होगा, मे बी कुछ है कि मैं आई वांटेड टू डू समथिंग फॉर द वर्ल्ड, आई वांटेड टू डू समथिंग गुड फॉर सम पीपल. कुछ भी कर सकते हैं, वेदर टू पुअर चिल्ड्रन को पढ़ाना है या कुछ और एनजीओ के लिए काम करो या समथिंग लाइक दैट. बट मेरे लिए ये दिस यूजफुलनेस इज डिफरेंट, बट मेरा स्किल और पैशन दैट इज टोटली डिफरेंट. सो क्या ये चीज अभी प्रेजेंटली जहाँ हम रह रहे हैं, क्या ये चीज एक साथ होना, इज इट पॉसिबल? कितना पॉसिबिलिटी है कि हमारा स्किल, हमारा पैशन किसी के लिए यूजफुल हो? क्योंकि आज हम जहाँ रह रहे हैं, हमारे स्किल और पैशन बहुत अलग है. मैं प्रोफेशनली एक इंजीनियर हूँ, मेरे स्किल्स एक डेवलपिंग है. मैं कहीं और, मैं किसी कंपनी में काम करती हूँ, बट
दो तीन कि मेरा स्किल और पैशन मेरा किस तरह से यूजफुल होता है, अगर मैं ऐसे बात करूँ तो हाँ वो यूजफुल हो रहा है जहाँ मैं काम करती हूँ, जो मेरे बॉसेस हैं उनके गोल सेटिस्फाई हो रहे हैं। बट ये मेरा धर्म है, ये तो थोड़ा मानना मुश्किल है। मतलब मेरे लिए ये चीज थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टिंग है कि नहीं, हम्म, आज की दुनिया में आपका स्किल, आपका पैशन, आपका यूजफुलनेस एक जगह पे, एक ही लाइन पे होना इज लाइक नेक्स्ट इम्पॉसिबल फॉर मी, जहां हम रह रहे, द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, द एमिनिटीज, द लग्जरी और वॉट एवर यू सी। तो ये okay. जो थॉट दिया है उसने, ये मंक ही कर सकता but है। but no no but he's what he is saying is जैसे like मैं मेरा एग्जांपल देती हूँ, अगर if you are getting it, जैसे सपोज आई एम अ टीचर, तो मैं पढ़ा रही हूँ, तो पढ़ाना मेरा पैशन है, टीचर ठीक तो है। हमेशा से कहा Teacher जाता and doctor, these two you cannot है। compare with others. एग्जैक्ट Okay, okay, एग्जैक्टली okay. Taking एग्जैक्टली। your example, suppose you're engineer, you are developing यस। any kind of software, तो software तुम्हारा skill है development, okay. हाँ। Profession से you are engineer, या। उसको यूजफुलनेस, उसने ये कहा है कि ठीक है, अभी यू आर सेइंग यू आर वर्किंग फॉर योर कंपनी, तो ठीक है, जो आप डेवलप कर रहे हो वो आपकी बॉस या आपकी कंपनी को यूजफुल है, बट आप ये यूजफुलनेस को इन फ्यूचर आप लोगों के लिए या एक जैसे सोसाइटी के लिए इन जनरल, आप कुछ इंजीनियर हो, कुछ ऐसा भी डेवलप, लाइक वी डेवलप एप्स, आप लोगों के लिए एप्स डेवलप कर सकते हो, दैट कैन बी यूजफुल, दैट कुड बी यूजफुल टू मेनी ऑफ देम। तो आप अकॉर्डिंग टू हिम आपको ऐसे ही आइडेंटिफाई करना है कि अपने काम में, बिकॉज इसका एक इंस्टेंस था, एक जगह इसने ये भी कहा था, बिकॉज पीपल हैव टू अर्न, ओके, बहुत लाइबिलिटीज भी होती है, तो ऐसा तो नहीं है कि हम सब चीज छोड़ के अपना हॉबी परस्यू करें। सो व्हाट ही सेड इज, एग्जैक्टली। अपने काम के एरिया में आप ये देखिए कि मुझे जो पसंद है वो मेरे काम के एरिया में कोई एक पॉसिबिलिटी निकलती है उस चीज की, कि मैं अपने काम के एरिया के थ्रू ही उसे अचीव करूं। जैसे इसने कहा था, जय शेट्टी, इसने कहा था मैंने ओके। जॉब की, एसेंचर में जॉब की। अब इसका काम क्या था, ही इज मोर ऑफ अ स्पीकिंग पर्सन, जो मतलब इस तरह का विजडम या ये मोटिवेशनल टॉक्स या इस तरह का लोगों को देता है, अपने विजडम शेयर करने पे ज्यादा बिलीव करता है, इसको लगता है इसका धर्म ये है। बट उसको काम करना था एक्सेल में। अब एक्सेल इज वेरी टफ फॉर हिम, उसने कहा मैंने बहुत कोशिश की, मुझे एक्सेल नहीं समझ में आ रहा है। बट मैंने क्या किया, क्योंकि वो एसेंचर में था, इसने एक मौका ढूंढा कि कुछ कुछ लोगों को वो एक इंटरनल आपके सेमिनार या उस तरह के नहीं होते, कंडक्ट कराए जाते फॉर एम्प्लॉयज, वे या। यू कॉल पीपल एंड दे शेयर देयर नॉलेज एंड विजडम। इन्होंने ने क्या किया, वो चीज पे पार्टिसिपेट किया, मतलब वो चीज कंडक्ट कराई। तो विद इन एसेंचर इनको ये समझ में आ गया एक्सेल मेरा चीज नहीं है, बट मेरा चीज ये है। एंड द कंपनी हेड और बाकी चीज उनको इतना पसंद आया कि उनको बड़े बड़े इवेंट्स में, कंपनीज के डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज के इवेंट्स में बुलाया जाता है। सो बेसिकली ही इज इनटू हिज जॉब, मतलब वो उसी कंपनी में है, बट उन्होंने अपना धर्म उस कंपनी में ढूंढा। वैसे ही आपको सोचना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू हिम, सी इट इज ऑल व्हाट आई एम सेइंग इज अकॉर्डिंग टू व्हाट इज रिटन इन द बुक। ही सेज यू हैव टू ट्राई टू आइडेंटिफाई कि अभी आप जाओ, अब आपको खुद सिचुएशन को एनालाइज करके और पहले ये समझना है कि एक्चुअली व्हाट यू आर पैशनेट अबाउट, और क्या आपका स्किल है, और उसको फिर कैसे यूजफुलनेस में डाल दोगे। इट्स अप टू ओके। यू टू थिंक, वो ये बोल रहे कि नो, इट्स अप टू यू टू थिंक। once you start thinking on that line, maybe you will achieve your calling. Once you achieve your calling, you will, from inside you will be more of a calm person, और मतलब जो बोलते हैं ना पीस, एक हैप्पीनेस, एक हाँ। सेटिस्फेक्शन जो लाइफ में आता है, वो आने लगेगा। हर कोई अपने फील्ड में, जैसे मुझे लगता है आज कोई एक हाउसवाइफ भी है, तो मुझे लगता है इवन शी कैन आइडेंटिफाई हर धर्म। उसके लिए जॉब करना या वो करना जरूरी नहीं, शी विल फाइंड समथिंग जो उसका कोई पैशन या उसका कोई स्किल होगा, और वो यूजफुलनेस में कैसे डाल सकती है, टू सर्व the people around or community around. Okay, so in that way what he is saying, maybe it is something we need to explore deeper, but इनका ये कहना था कि धर्मा, it even he says it is better to do one's own dharma imperfectly than to do another's perfectly. इट्स लाइक बोलते हैं ना कि खुद की मदद, दूसरों का काम अच्छा करने से अच्छा अपना काम थोड़ा इम्परफेक्ट भी रहे, लेकिन अपना काम आप बेटर, मतलब अपने काम पे फोकस रखिए। सो दैट इज व्हाट ही इज सेइंग अबाउट द धर्म ऑल्सो। दूसरों का काम तो आप बहुत परफेक्टली करके उनको दे रहे हैं, इससे बेटर है आप अपना काम थोड़ा इम्परफेक्टली करो, लेकिन अपना कॉलिंग पे ध्यान दो। डोंट वर्क फॉर अनदर्स पर्सन कॉलिंग, वर्क फॉर योर कॉलिंग।
and majority of time we humans, spend a lot of time on working on someone else calling. So that's what he's saying. Play hardest in your area of strength, and you will achieve depth, meaning, and satisfaction in your life. That is what he's talking about, the purpose. Many things are there in the book, but a guideline, just a briefing I'm telling, that is what he means about to identify your dharma. And like he has given many ways, he has given many examples in different manners to explain you that how you can achieve. Like once you read the book, you get like how you can, achieve that. Similarly, next thing is routine. After purpose, he talks about the routine. Now what we understand by routine is basically कोई भी चीज को एक पर्टिकुलर टाइम पे, कोई भी एक्टिविटी को हर दिन उस पर्टिकुलर टाइम पे करना. जैसे कि हम सुबह उठते हैं, सपोज सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, तो ये एक रूटीन है. इट्स लाइक ऑटोमेटिकली वी वेक अप, वी ब्रश आवर टीथ, वी डू आवर चोर्स जो भी अपना है. तो रूटीन को मेंटेन करना बड़ा जरूरी है. यू हैव टू बी इन रूटीन to achieve creativity as well. You don't need to go and do multitasking. हमको लगता है multitasking अच्छा है, but he is saying focus on single task. Single task पे पूरा focus दो, rather than बहुत सारे task में surface पे focus देने से कुछ नहीं होगा, कुछ focus नहीं जाएगा. इससे अच्छा एक पे पूरा ध्यान जाएगा, so you will become more creative. So he talks about here he talks about routine as well. I think And with routine, we can also, journal writing. Like we can have a routine of journal writing. Many say that you should do journal writing, and it will help you for the creative writing and the like this. But apart from that routine, I think the one thing that I do a lot is a to-do list. That is a must routine for me, and that helps me a lot, and it gives, whenever you complete that task, it gives a sense of achievement. Okay, I have done for the day. So yeah, and apart from that, I think there was a book, Atomic Habits. Yeah, I bought that book. That was also, I haven't read, but I have heard about it a lot. But that book also told us कि छोटी छोटी हैबिट्स आपके काफी फायदेमंद रह सकते हैं अगर आप उनको रूटीन में डालते हैं तो. Yeah. So Kirti, one question: when you make the to-do list, morning में बनाते हो कि evening में? मतलब next day का either before night or either early in the morning, the first thing. Okay. Because what he is saying is the evening routine is as much important, because आप next दिन उठ के ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब अपन सोच रहे हैं. He is saying prepare in the night में prepare कर लो. ताकि उठ सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, बट इसके लिए मैंने कहीं पढ़ा था कि कई बार क्या होता है ना कि अगर आप रात को ही वो लिस्ट बना लेते हो ना, तो यू कांट स्लीप पीसफुली. आपके दिमाग में कल वाले काम घूमते रहते हैं, ये करना है, ये करना है, ये करना है, वो करना है. तो कई लोग ये कहते हैं कि सुबह उठो, फ्रेश माइंड से उठो, डू योर थिंग्स एंड देन स्टार्ट विथ योर लिस्ट. आपको पता है ये आपके दिन के गोल है, वरना आप वो ऐसे होते हैं कि आपके दिन में कुछ बड़े काम होते हैं, जैसे वी हैव दैट बुक, ईट दैट फ्रॉग, डू दैट डिफिकल्ट वन, द फर्स्ट थिंग. तो अगर आप वह सब चीजें पहले ही रात को लिख लोगे तो रात भर वही चीजें चलती रहेगी ना, तो बेटर है. I agree with you, Kirti. 2-3 days back, I had sleepless night because I wanted to do something. And in the night only I decided, okay, tomorrow I'll do these things. And I was very happy that I'll be able to finish it tomorrow. उस excitement में या कुछ भी, I was waiting कि morning कब होए, and then I will perform those tasks. Excitement तो होती नहीं है, मेरे को तो टेंशन होती है कि अगले दिन ये सब करना है. I am alone with my husband, my kids have gone, so मेरे लिए खाली होता है. तो आई जनरली थिंक कि हाँ कल मेरे को ये करना है. तो आज भी मेरा था आज का प्रोग्राम, तो ये आ गया, तो मैंने कहा नहीं, आई कैन इजीली गिव 1 hour हियर एंड इट इज समथिंग रीडर्स. तो ये क्या कहते हैं, बुक क्लब तो इज एनी टाइम माय फेवरेट. कोई भी बुक डिस्कस हो रही है तो
You always gain something from there. Yeah. So Yeah. है, लेकिन ये मैंने कीर्ति ने जो ये बोला, ये आई अग्री. फिर मैंने कहा कि हाँ ठीक है, लेकिन अगर नहीं बनाओ, then you in the morning you waste your time also, like you must be Yeah. working. I'm not working, something else हम्म comes, किसी ने फोन कर दिया, तो हाँ उसमें हाँ. फोन पे ही तुमने टाइम वेस्ट कर दिया. With me it's Yeah, not a yeah. routine. I kept my, I wanted to start my painting, one painting, oil painting. मॉर्निंग में थोड़ा सा टाइम हुआ, सिस्टर को फोन कर दिया, उससे सोचा था 5 मिनट बात होगी, आधे पौन घंटे बात हो गई. तो उसमें मेरा निकल गया वो वाला बिफोर लंच का टाइम. आई एम जस्ट टेलिंग यू, had I started it in the morning, क्योंकि रात में ही मैंने रख लिया होता कि मेरे को ये करना है, तो I would have started in the morning only, little bit कि सामान निकाल लो या कुछ कर लो. Right. It has both I will Both say ways, Pro yeah. and yeah, like pro and con तो दोनों चीजों के होते हैं, no doubt. yeah, But Okay. but I But have actually, experienced both. yeah. But actually, what he's I have yeah. experienced that. Yeah. But actually, what he's saying is कि जैसे आपका evening routine, and especially he talks about human growth hormone HGH करके होता है, जो he says is very important for the even for the long life. मतलब क्या होता है कि जनरली 10 PM से मिडनाइट के बीच में ये हमारी बॉडी में ज्यादा होता है ये लेवल. और इसका पॉइंट है कि इस टाइम पे हमको रेस्ट होना चाहिए. मतलब सेल बॉडी रिपेयर कर रही है, मेंटेन कर रही है, सेल अपने आप को रिपेयर कर रहे हैं. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसका पॉइंट है, इन्होंने अपनी जर्नी जो बताई कि इन आश्रम्स उस वक्त इनका कंसेप्ट होता था कि 8 o'clock से 10 o'clock के बीच में मतलब इनको सो जाना है. तो उस वक्त इनको डिसाइड कर लेना है, बिकॉज वन शुड नॉट वेस्ट टाइम कि मॉर्निंग में उठ के अच्छा आज क्या खाना है, आज क्या पहनना है. मतलब इवन फॉर ड्रेस भी क्या पहनना है सोच के रख लो कि कल उठ के ये ड्रेस पहनना है. सो इट्स लाइक यू विल वेक अप, पता है ये खाना है, ये पहनना है, ये करना है, तो आप जल्दी जल्दी ये सब कर लेते हो. एंड यू डोंट वेस्ट टाइम ऑन. इनका पॉइंट ये है कि आप ये सब चोर्स में टाइम वेस्ट मत करो. बोलते थे हम जैसे हम कपड़े भी रख रहे हैं तो 2 जोड़ी रखना है, एक पहनना एक धोना, मतलब हमको इसमें वेस्ट नहीं करना है टाइम सोचने में बहुत टाइम. आज ये पहने तो उसके साथ ये पहने, या आज ये खाएं तो उसके साथ ये खाएं. तो इनका पॉइंट है ये सब चीजें आप इवनिंग रूटीन मतलब इवनिंग में ही डिसाइड कर लीजिए कि मॉर्निंग में ये चीजों पे अपना टाइम मत वेस्ट करिएगा. दैट इज व्हाट द बुक सेज, दैट इज व्हाट हर एक चीज का अलग अलग है. यू आर थिंकिंग फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल कि अच्छा ये इस टाइम में वेस्ट मत करो. I was thinking from a different angle. Now we can sort it out and we know where. सबका पॉइंट अलग अलग था क्या चीज को करने का. इवन कीर्ति जो टू डू लिस्ट है वो सुबह उठ के बनाना चाहती है, दिन भर में मेरी रूटीन लाइक मेरे 24 आवर्स ऐसे जाने चाहिए. और जैसे इवन हैव हर्ड जो फेसबुक के जो मार्क जुकरबर्ग हैं उनका भी सुना था, उन्होंने ना ग्रे शर्ट लिए 8 ग्रे शर्ट. अब वो टाइम नहीं वेस्ट करते कि क्या पहनना है, सुबह उठना है वो ग्रे शर्ट ही पहननी है. मतलब ये एक एग्जाम्पल है उन लोगों का जो सक्सेसफुल है कि वो ये सब चीजों में अपने दिन का कोई टाइम नहीं बर्बाद करना चाहते. द थिंग्स दैट वी, अगर हमारी कोई रूटीन ना हो समझो, या हमारा कोई पर्पस नहीं है, जो अगर विदाउट पर्पस है, विदाउट रूटीन है, तो ये सब चीज हमारे दिन का बहुत बड़ा टाइम लेती है. छोटी छोटी चीज घर की. या एंड सिमिलरली इफ यू हैव अ पर्पस, तो आप ये सब थोड़ी सोचोगे कि अभी इतना टाइम इसमें देना. यू जस्ट वेक अप, यू विल ड्रेस अप, you'll eat your breakfast, you'll go out, you'll do your work. ऐसा होता है. So that's what he's saying कि ये चीजों को विजुअलाइज करना है, टुमारो को विजुअलाइज करना है. So emphasis on every moment of the day. उनका रूटीन में ये है कि आप हर मोमेंट को फील भी करिए. जैसे ब्रश भी करते हैं, बस ब्रश किया वो नहीं, फील करिए. मतलब सुबह थोड़ा जल्दी उठिए ताकि आप जो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे सुबह उठ के चाय भी पी रहे तो हड़बड़ी में मत पीजिए. नाश्ता कर रहे हैं तो लेट हो रहा ऑफिस में, हड़बड़ी में मत करिए. ब्रश भी कर रहे तो फील करिए क्या ब्रश कर रहे हैं, वो एक तो वो मोमेंट को एंजॉय करने के लिए थोड़ा जल्दी उठिए और अपनी एक हर चीज को एक पर्टिकुलर टाइम पे करने की कोशिश करिए. दैट इज व्हाट ही इज एम्फसाइजिंग, जैसा बुक में लिखा है. एंड मोर ओवर ही इज ऑल्सो एम्फसाइजिंग ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ लोकेशन. मतलब ही इज सेइंग कि लोकेशन हैज एनर्जी. कोई भी काम आप किस लोकेशन पे कर रहे हैं, दैट माइट बी लोकेशन मीन्स कुड बी लाइक कौन सी जगह पे है आप, कौन सी सिटी, कौन सी जगह, कौन सा घर. इवन घर में भी लाइक आप एक्सरसाइज करते हो तो कोई पर्टिकुलर आपके घर की कोई जगह, उसमें आप जैसे एक होता है ना, जैसे हमारा स्टडी रूम होता है, तो जब भी स्टडी करना है तो हम स्टडी रूम में जाते हैं, या खाना बनाए तो किचन, एक लोकेशन होती है चीजों को. सो ही सेइंग द लोकेशन आल्सो हैज एनर्जी कि किधर रह रहे हैं, और किधर रह रहे हैं लोकेशन
And secondly, he is saying time has memory and location has energy. इसको मैं explain करती हूँ. Time has memory मतलब अगर मैं हर दिन 6 बजे उठती हूँ और मैं हर दिन 7 बजे चाय पीती हूँ, तो मेरा बॉडी उस मेमोरी को रजिस्टर करता है कि 7 बजे चाय पियेंगे. एक टाइम के साथ एक मेमोरी जुड़ गई है. और लोकेशन भी मतलब जैसे कुछ लोगों का होता है ना, पर्टिकुलरली सोफा में यही लोकेशन में बैठ के पीते हैं, या टेबल में यही लोकेशन में बैठ के खाते हैं. इट हैपेंस. सो आवर बॉडी रजिस्टर्स दैट. सो लोकेशन हैज एनर्जी एंड टाइम हैज मेमोरी. एंड रूटीन में आपको ये चीज का ध्यान रखना कि यू आर डूइंग द सेम एक्टिविटी, एक वो सेम टाइम पे, आपके डेली के चोर्स भी सेम टाइम पे हो जाएं. जैसे अगर आप उठते हैं, मान लीजिए पूजा भी करते हैं, अगर सुबह 9 बजे करते हैं, एवरीडे 9 बजे करो. मतलब ये बोल रहे कि करो. अगर नहीं करते हो तो आप अपनी बॉडी को ऐसा कस्टम करो कि उसको 9 बजे खुद ही वो मेमोरी आ जाए कि अभी मुझे ये करना है. इट विल रिमाइंड यू. तुम्हारी रूटीन बनाएगा वो कि अभी 9 बजे ऑटोमेटिक वो आएगा कि आपको ये करना है. अब जब वो करोगे तभी आपको, या इट मेक सेंस. अभी क्या होता है, व्हेन वी डोंट हैव एनी पर्पस, तो हमको लगता है कर लेंगे ना, डू आफ्टर 1 आवर, जस्ट अभी बात कर लेती हूँ फोन पे, जैसे आपने कहा ना अभी फोन पे बात कर लेती हूँ तो कर लूंगी. उसका मेरा पॉइंट ये पोस्टपोन हो है कि गया ना. या हाँ व्हाट मेरा पोस्टपोन हो गया ना, तो फिर की हाँ शुरू हाँ कर देती. अब मैं ये सोच रही हूँ चलो अब टेलर के यहाँ जाके वो दे आती हूँ ऑल्ट्रेशन का, कल सुबह सुबह शुरू करूंगी. Because या fish in the morning. या And you can achieve a lot if you start in the morning. And या beginning is always tough. Like painting मेरे को करनी है, उसकी ट्रेसिंग या करनी है, या उसको या सब आउटलाइन तैयार करनी है, कलर्स या बाहर या निकालने हैं, all हाँ that. हाँ हाँ So हाँ हाँ हाँ. okay. ओके, सो दैट इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट रूटीन. तो ये दो पार्ट हो गए, एक पर्पस हो गया, एक रूटीन हो गया. द थर्ड थिंग इज टॉकिंग अबाउट इज द माइंड. जो हमारा माइंड है वो उसका पावर बता रहा है कि कितना इम्पोर्टेंट है ग्रो करने के लिए. माइंड का रोल बता रहा है कि जस्ट मिनट. माइंड ही इज टॉकिंग अबाउट अ मंकी माइंड. उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, एक मंकी माइंड होता है जो एक चाइल्ड जैसा होता है. जैसे कि एक वाइल्ड जंगल में एक मंकी एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में कूदता है, फिर दूसरे पेड़ में कूदता है, फिर दूसरे पेड़. तो एक ऐसे हमारा माइंड है. जो जो हमारे थॉट्स है, दिन में हमको 70,000 थॉट्स आते हैं. वो थॉट्स हमारे एक मंकी माइंड जैसा है जो अलग अलग ब्रांचेस में कूदता है. नाउ ही सेइंग इज दैट यू हैव टू ट्राई टू कंट्रोल दैट माइंड. मंकी माइंड को मॉन्क माइंड जैसा करना है. जैसे समझ लो मंकी माइंड एक चाइल्ड है और मॉन्क माइंड एक पेरेंट है. तो पेरेंट को पता है चाइल्ड के लिए क्या सही है क्या गलत है. बट चाइल्ड को क्या है, जैसे उसको कुछ हो तो उसको तुरंत जिद है, उसको ये चाहिए तो ये चाहिए. सही है नहीं है चाइल्ड डजंट थिंक, बट अ पेरेंट अंडरस्टैंड्स. सो ही इज ट्राइंग टू गिव यू द कंसेप्ट ऑफ मंकी माइंड एंड द मॉन्क माइंड, और कैसे वी हैव टू ट्रेन दैट. मंकी माइंड इज मोर ऑफ अ रिएक्टिव माइंड. वो रिएक्ट पहले करेगा कुछ चीज में. लेकिन मॉन्क माइंड इज प्रोएक्टिव. पहले वो सोचेगा, समझेगा ये कितना क्या है, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, ये कितना जरूरी है, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए. सो दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग कि अपने माइंड को हमको ट्रेन करना है. ही ऑल्सो गिव्स यू द कंसेप्ट ऑफ दो टू वुल्फ्स, जहां पे एक वुल्फ रिप्रेजेंट करता है एंगर, एनवी, ग्रीड, फियर, लाइज, इनसिक्योरिटी एंड ईगो. एंड ही टेल्स एक दूसरा वुल्फ है जो रिप्रेजेंट करता है पीस, लव, काइंडनेस, कंपैशन, ह्यूमिलिटी एंड पॉजिटिविटी. तो इसमें क्या होता है कि एक बच्चा एक मॉन्क से पूछता है कि तो कौन सा वुल्फ जीतता है. तो मॉन्क आंसर देता है, वन यू विल फीड विल विन. Wow. So he said, how you feed? He asked, how you feed? So the monk said, by what you read or hear, who you spend time with, by what you do with your time, and what you focus your energy and attention. वैसे माइंड जाएगा. Very nice. So that is how he is saying to train your mind. वो बहुत जरूरी है. Even he says, he quotes from Bhagavad Gita जो लिखा है ना कि for him who has conquered the mind is the best of friends. But for one who has failed to do so, his very mind will be the greatest enemy.
Completely agree. Yeah. So that is what he is saying कि sometimes our mind works against us. कि क्या फीड कर रहे हैं, कभी कभी माइंड ही एनिमी बन जाता है. Hmm. Because that is what he's saying ना, insanity is doing the same thing again and again expecting different results. आपको माइंड बहुत विचलित है. इट्स लाइक वो चैरियट हो, अगर अगर आप वो चैरियट में आपने वो क्या बोलते हो आप, रेन कर या सेंसेस को इफ यू कंट्रोल योर माइंड, अगर आप कंट्रोल कर पाते हैं तो बाकी चीज, ये एंगर फियर ये सब आपको डिविएट नहीं कर सकता. लेकिन अगर आप सो रहे हैं, आपका माइंड सो रहा है, मतलब माइंड अगर सो रहा है, तो ये जहां ले जाएंगे इमोशंस, आप वहां जाते जाओगे. Hmm. इमोशंस आपको ले जाएंगे, आप इमोशंस को नहीं ले जा पाओगे. सो हियर ही गिव्स द कंसेप्ट कि अब कैसे माइंड को इन कैसे माइंड को हम फीड करें. So he has given certain techniques also. He talks about you have to invest in your conscious mind, मतलब consciously सोचनी है चीजों को. इन्वेस्ट करो, रीफ्रेम करो, मतलब पर्सपेक्टिव दो हर चीजों को. जैसे स्केल में रैंकिंग दो 0 to 10, 10 बीइंग द वर्स्ट. ये चीज 0 to 10 में किधर फिट बैठती है, रिफ्रेम करना है. स्लो इट डाउन, लाइक राइट ऑन पेपर. ही सेइंग कि जो थॉट्स आ रहे हैं, जब समझ में नहीं आते, उन्हें पेपर में लिखना शुरू करो, आपको क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाएगी. माइंड के थॉट्स को जब नहीं समझ में आता, राइट इट डाउन. सो many things he's saying, and he's also talking about attachment and detachment here. We talked about attachment detachment in the fear chapter, but यहाँ बहुत beautiful एक line है, I will tell. First he says attachment brings pain. ठीक है, attachment brings pain. If you think something is yours, or you think you are something, then it hurts to have it taken from you. ये attachment है, क्योंकि attach हो गए हैं. But he is also saying detachment is not that you own something, but that nothing should own you. That is detachment. And very beautiful, because हम सोचते हैं डिटैच हो जाना मतलब सब चीज त्याग कर दो, सब चीज छोड़ दो. वो डिटैचमेंट नहीं है. He is saying detachment is not that you own something, but it is but that nothing should own you. That is the meaning of detachment. And once you start doing that, mind is in your control. Hmm. The greatest detachment is being close to everything and not letting it consume and Hmm. own you. This That is is the yeah, you don't Yeah. have to leave everything. You Mhm. have to enjoy, but at the same time, if that you don't get it, so it doesn't, Mhm. it should not affect It you. should not bother you. Yeah. Yeah. Yes. Means if it's not bothering you, that means you are detached. And that Yeah. is a good thing. So that is what he is saying in this mind chapter. In a brief, I said, of Hmm. course, I think I will recommend, please go ahead, read. If you have not read, the book is very nice. And the fourth part, he is talking about ego. Ego, we are familiar with the term ego, and he classifies ego, फॉल्स ईगो क्या होती है. जब आप ईगो तब होती है जब आप अपने को दूसरों से सुपीरियर समझने लगते हैं ना, वहां वो ईगो आने लगती है. एंड देन ही टॉक्स अबाउट हाउ ह्यूमिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, and many other aspects, to break the ego. Because he asked one question, he asked in his book, and I will ask, why does it take a tragedy for us to come together? Why does it take a tragedy for us to come together? क्योंकि बाकी टाइम में ईगो इतना होता है कि हम डिफरेंशिएट करते हैं कि ये हमारे बराबर है कि नहीं, इसके साथ उठना है, किसके साथ बैठना है. पर जब ट्रेजेडी हो जाती है ना, वहां वो ईगो टूट जाता है. And that is why the tragedy brings you, because our ego sets us on a path where we put more values on ourselves and those whom we recognize as being alike. ईगो ये कर देता है कि अपने आप को हम इतनी वैल्यू दे देते हैं कि हम बाकियों को या तो कुछ समझते नहीं है, या हम खुद ही सोचने लगते हैं कि हम तो इतना रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, डिमांड करते हैं. बट एक्चुअली रियलिटी में वैसा है नहीं. तो ईगो इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन थिंग. यू हैव टू टेम दैट, and that will only lead to the growth. So there are like many things about, and he classifies, he talks about judgment here. He talks about projection, and very good line, judgment. He says that judgment is something that always backfires on you. जैसे आप किसी Hmm. को जज करते हो. और मैं एक बहुत बहुत अच्छी स्टोरी इन्होंने दी, बहुत छोटी स्टोरी. 4 monks की स्टोरी कहा.
4 monks डिसाइड करते हैं कि हम 7 days तक एकदम साइलेंस रहेंगे, साइलेंट, बोलेंगे कुछ नहीं, मेडिटेट करेंगे. तो पहला दिन शुरू हुआ, अच्छा जा रहा था, लेकिन जैसी शाम हुई ना, तो दूसरे मॉन्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी लैम्प को ऑन करने की, बट वो अपने मेडिटेशन में था. तो पहला वाला मॉन्क उसको बोलता है, अरे इट्स योर टर्न टू ऑन द लैम्प. तो उसका साइलेंस टूट गया. तो दूसरा बोलता है, अरे तुमने बोला क्यों, तुम्हारा साइलेंस टूट गया. तो उसका भी साइलेंस दोनों टूट की गया. टूट गए. तो फिर तीसरा जो मॉन्क था, तो उसने भी बोला कि अरे तुम क्यों बोले, मतलब तीनों का साइलेंस टूट गया. तो फोर्थ वाला अपने आप को सुपीरियर समझ रहा था, वो हंस रहा था, वो बोल नहीं रहा था. और उसके बाद लास्ट में उसने बोला, देखा मैंने कितना कंट्रोल कर रखा था. और उसका so that is where he's talking about the judgment, कि it almost backfire on us in one way or another. In act of criticizing others for failing to line up to higher standards, we ourselves are failing to live up to the highest standards. And this story is so beautiful. It is a very short story, but a very beautiful story to make you understand the concept of judgment, कि आप भी गिरोगे, आप भी नीचे गिरोगे अगर आप ये करते हैं. तो आप जज करते हैं तो वो बैकफायर किसी वे से तो करेगा. And then he talks about projection, where he tells that projection is our tendency to project onto others emotions or feelings that we don't wish to deal with ourselves. तो वो हम प्रोजेक्ट करते हैं. एंड सो डीप थॉट्स, मतलब ये बुक पढ़ने के बाद एक बार सोचना पड़ता है. यू हैव टू स्टॉप देयर. आई स्टॉप देयर, आई थॉट, आई पॉन्डर्ड, ये क्या बोल रहे हैं. एंड देन आई एम ट्राइंग टू रियलाइज, व्हाट एम आई डूइंग द सेम? इज इट समथिंग व्हाट आई हैव बीन डूइंग, एंड इज इट समथिंग व्हाट पीपल अराउंड मी आर डूइंग? Without realizing, yes, we are doing. In some areas, in some aspects, we all are doing this without understanding about the Repeat this, intention. please. We Sure, are sure. projecting. Projection is our tendency to project onto others emotions or feelings that we don't wish to deal with ourselves. Beautiful. And he has given multiple examples there. I'm not talking about that, but like when you read the book, you will understand how he has beautifully explained the concept of projection also through varied examples. He also talks about ego and self-esteem. Sometimes हम अपना false ego को self-esteem समझ लेते हैं, कि जब जो हमारा ईगो है, हमको लगता है वो हमारा सेल्फ एस्टीम है. सो हियर ही ट्राई टू डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट इज ईगो. लाइक ही सेज ईगो इज लाइक इट फियर्स व्हाट पीपल विल से. अगर आपको डर लगता है लोग क्या बोलेंगे, तो वो ईगो है. लेकिन इफ यू फिल्टर व्हाट पीपल से, दैट इज सेल्फ एस्टीम. ईगो इज लाइक कंपेयरिंग टू अदर्स, बट सेल्फ एस्टीम इज कंपेयरिंग टू योरसेल्फ. ईगो wants to prove, खुद को प्रूव करना चाहता है. ईगो wants to prove themselves. Self esteem wants to be themselves. ईगो knows everything, सब पता है ईगो को. सेल्फ एस्टीम कैन लर्न फ्रॉम एनीवन. अगर आपको लगता है कि आपको सब पता है, तो वो आपका ईगो बोल रहा है. और अगर आपको लगता है कि आप सबसे सीख सकते हैं, तो वो आपका सेल्फ एस्टीम बोल रहा है. ईगो इज लाइक टू प्रिटेंड टू बी स्ट्रॉन्ग, एंड सेल्फ एस्टीम इज ओके बीइंग वल्नरेबल. ईगो इज लाइक वांट पीपल टू रेस्पेक्ट देम. मुझे सब रेस्पेक्ट दें. ईगो ये बोलता है मुझे सब रेस्पेक्ट दें. सेल्फ एस्टीम इज he respects self and others. So that is how brilliantly he described, classified what is ego and what is self-esteem. And in that way, brilliantly, these 4 chapters come under the category of growth, where, to grow, first you let go all those things. And for your growth, you need to work on these 4 aspects: purpose, routine, mind, and ego. If you work on these aspects, then as a person, you will be, your growth will start.